talking about the goals. I want to solve a problem that billion people are facing and wanted to charge like $1 from each and wanted to be the next billionaire. बहुत सारे टीयर 3 कॉलेजेस में क्या होता है कि बीटेक करके डिग्री दे देते हैं और कुछ भी बच्चों को आता नहीं है, और यही पूरे 99% इंडिया का हाल है। I did like multiple projects on freelancing and multiple full-time job offers from remote startup. Like अभी तक किसी ने डिग्री नहीं पूछी to be honest. स्किल्स ही मैटर करती है, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, तो हमें पता है कि हम लोग हायरिंग उसी बेसिस पे करते हैं। कैंडिडेट के अंदर स्किल्स नहीं है, चाहे वो आईआईटी से, एनआईटी से, किसी कॉलेज से है, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंपनी को रेवेन्यू अपना जनरेट करना है, उसको स्किल्स चाहिए, उसको डिग्री लेके कुछ नहीं करना है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रकाश शुक्ला, आई एम अ सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, और आज कोडिंग विद प्रकाश यूट्यूब चैनल पे हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं शशांक दीक्षित। शशांक की एज सिर्फ 19 ईयर्स ओल्ड है। शशांक ने अपना खुद का स्टार्टअप बिल्ड करा है हेल्थ केयर डोमेन में। शशांक हैज आल्सो डन लॉट ऑफ फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट विद यूएसए एंड यूके क्लाइंट्स। वेलकम शशांक, वेलकम टू द चैनल। Thanks for having me. शशांक, आई एम वेरी क्यूरियस, मुझे आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछने हैं, एंड लेट्स स्टार्ट विद योर इंट्रोडक्शन। Hi there, I'm Shashank Dixit, a 19-year-old boy from Shahjahanpur, a city near Lucknow. I'm founder of Magnum Care, a company that works in healthcare domain, and I have a level 2 seller on Fiverr and have delivered over 30 plus websites across globe and backing up with full-time job offers from remote startups of USA and UK based, namely Status Neo, Plan Easy, and other startups. And I have also co-founded an agency named Growth Forex with an IIT Roorkee alumnus, Ravi Mathur, and we both have built a team that has worked with multiple unicorns, be it Pristine Care, Qdel, Bajaj Finance, and other multiple companies. And I'm also a core member of India's like Club IIT Kharagpur and currently pursuing my bachelor's from IIT Madras and looking to join a new college in Bangalore. So जिसके बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे होंगे इस पॉडकास्ट। ग्रेट। शशांक, मुझे बहुत सारे क्वेश्चन है। पहले सबसे पहले कि आपने ये अपना स्टार्टअप कौन सी एज से स्टार्ट किया था? यू आर जस्ट 19, आप ऑलरेडी अपना स्टार्टअप बिल्ड कर चुके हो, यू ऑलरेडी मेंशन्ड इन आवर लास्ट चैट। तो ये कब से आपने स्टार्ट किया और कितना टाइम हुआ है आपको स्टार्टअप में? So I started Magnum Care this year only in April itself, and talking about my agency Growth Forex, I started it in 2023 April last year, and that's how all started. तो हेल्थ केयर ही क्यों? और बहुत सारे डोमेन्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसे हम एक प्रोडक्ट बना के सॉल्व कर सकते हैं। आपका स्पेसिफिक इंटरेस्ट हेल्थ केयर में क्यों आया? Okay, so इसका like answering to this particular question, my mother got diagnosed with a fatty liver, and we live in a tier 3 city. Okay, so my doctor here named XYZ, not naming any doctor, but he recommended us to go for the tier 1 city and had a better treatment option. So from that particular point to deciding which doctor to see in a tier 1 city and his availability, time availability, then what insurance we have, does that insurance cover that hospital or not, what is copay and what's insurance limit, rent limit, and all that stuff. So I found that there's like big gap in healthcare and really unorganized, and the information is totally one-sided. Like doctors को पता है और insurance companies को पता है, एक end user को अपने बारे में ज़्यादा details होती ही नहीं है. So there is no proper SOPs, like there is no proper company that can like guide us to okay, so ये करना है, so ये ऐसे करना है. And healthcare is the fastest growing industry, so that's how I identified the problem in healthcare, and we are aiming to solve that problem. ग्रेट। तो शशांक, बहुत सारे बच्चे पॉडकास्ट देख रहे होंगे, आपने मेंशन किया कि आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए हैं फ्रीलांसिंग में विद यूएसए एंड यूके क्लाइंट्स। तो अगर कोई स्टूडेंट स्टार्ट करना चाहता है फ्रीलांसिंग, तो उसकी जर्नी क्या होगी? कैसे स्टार्ट करे, कैसे पहला प्रोजेक्ट पिक करे, कैसे पैसे कमाए? Okay, so talking about my own personal journey, I started coding back in lockdown period and got my first freelance project within the 6 months of starting coding from a company named Marvin Projects, a construction company based in Noida. And then I got the second project, Power Enable, from their referral only. So the first thing that you should do is learn any good skill. It could be video editing, it could be web development, it could be any good skill that you can acquire really fast, and then start reaching out to people, start using LinkedIn, start using Reddit, start using Twitter. Replace your Instagram with Twitter and replace your Facebook with Reddit, and you'll figure out everything on your own. That's how it goes. ग्रेट। तो शशांक, ऑलरेडी आप बहुत कुछ कर चुके हो, तो आपका नेक्स्ट 4 to 5 years का क्या प्लान है? क्योंकि आप 19 के हो, 23 तक क्या करना है? मतलब स्टार्टअप को बिल्ड कर लेना है या फ्रीलांसिंग ही करना है? तो नेक्स्ट 4 years के क्या आपके गोल्स हैं? So talking about my goals for the next 4 to 5 years, I don't have predefined goals for the next 4 to 5 years, but talking about the goals, mota I can say like I want to solve a problem that billion people are facing and wanted to charge like $1 from each and wanted to be the next billionaire. That's a like selfish goal, but yeah, I just want to solve healthcare problems and want to make healthcare more reachable and affordable for the humans. ओके शशांक, तो गोल्स तो मुझे आइडिया हो गया, बट इन गोल्स को अचीव करने के लिए क्या एग्जैक्ट रोड मैप और प्लान आपने बनाया
करना है कि आप कहाँ जाओगे, क्या करोगे? Okay, so I'll be moving to Bangalore by the 2nd of August next month and joining Scalar School of Technology. And from there, I'll start my bachelor's from Scalar School of Technology and will continuously start building Magnum Care. So that's the goal. And under the guidance of Abhimanyu Saxena, Saurabh Saxena, and folks that have themselves built their multi-billion-dollar company. तो शशांक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आप स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी को क्यों ज्वाइन कर रहे हो? स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की तरह न्यू जनरेशन कॉलेजेस और भी हैं ऑप्शंस मार्केट में अगर आप देखो। और एक क्वेश्चन ये है कि आपने आईआईटी मद्रास को ड्रॉप करने का क्यों सोचा? Just talking about that, like I'm more interested into building the startup than getting placed in a farm company. That's very beautiful quote that I remember. Everybody wants to work at Fortune 500 companies. Very few want to build one. I identify myself as that few people जो एक Fortune 500 company build करना चाहते हैं. So Scalar aligns with my goals. So I'm joining Scalar over IT. अच्छा, अगर इनको कंपेयर करेंगे आईआईटी मद्रास को और स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी को, तो क्या क्या डिफरेंसेस हैं? मतलब क्या क्या पॉइंट्स हैं आपको जो स्केलर में दिखे, मतलब और वहां पर आपको लग रहा है कि ये सब नहीं था? स्टार्टअप को छोड़ के अगर और भी हम करिकुलम को देखें, प्लेसमेंट रिलेटेड देखें, अगर इन सब पॉइंट्स को कंपेयर करें तो आपको क्या लगता है कि एसएसटी में क्या बेटर है? Firstly, the human touch. Like SST में काफी अच्छा support system है compared to that human touch. Like since I was like a BS student, so comparing to that, Scalar में काफी कुछ चीजें like latest curriculum. Second thing, PSM culture, that batch success manager, that people like 50 like group of people will have a separate teacher जो उनकी नजर रखेगा, उन पे like guide करेगा. From the first itself, I identified like LinkedIn पे post काफी देखी होंगी आपने भी, like people are building their like Vision Pro application build कर रहा है, कोई machine learning model build कर रहा है, space hackathons जीत रहे हैं लोग. From the first year में ICPC regionalist qualifying, like so काफी crazy things लोग कर रहे हैं. So and also building projects with the Indian government. मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि भाषिनी करके प्रोजेक्ट, तो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट थे जिन्होंने बहुत सारे अमेजिंग हैकाथॉन जीते, ऐसे प्रोजेक्ट्स बिल्ड करे. और एक और मैंने आर्टिकल पढ़ा था जिसमें ये बताया गया था कि 66% जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे उनका ऐसा कोई कोडिंग का बैकग्राउंड नहीं था. मतलब उन्होंने कोडिंग एक तरीके से स्क्रैच से पूरे सीखी है और सिर्फ 8-9 मंथ्स में उन बच्चों को ट्रेनिंग भी मिली है और उन्होंने इतने अमेजिंग प्रोजेक्ट बिल्ड करे. तो एकदम प्रैक्टिकल लर्निंग हुई है. Even I visited the campus back in May 2024. So like जब मैं campus visit कर रहा था तो I talked with multiple people on the campus. And अगर आप किसी भी कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पे positive negative दोनों reviews मिलते हैं. But surprisingly, I'm not boasting anything, but surprisingly the like there was 100% positive reviews about Scalar. So जब first year batch काफी खुश है like Scalar से. The only con that I feel Scalar has, only con was like campus, like करण जौहर का campus नहीं है वहाँ पे. So campus is really restricted to the particular areas. Like चीजें हैं वहाँ पे explore करने के लिए. But Bangalore itself a great place to explore if you just wanted to be in a software engineer. Right. और शशांक, I have seen one podcast in your channel जिसमें आपने अभिमन्यु जो फाउंडर है स्केलर उनके साथ पॉडकास्ट किया था और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे थे अपने स्टार्टअप से रिलेटेड. तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपका वो एक्सपीरियंस कैसा था और उस पॉडकास्ट के बाद आप और मोटिवेट हो गए कि स्केलर को ज्वाइन करना चाहिए या फिर अपना स्टार्टअप को बिल्ड करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए? डेफिनेटली लाइक मोटिवेशन तो काफी अच्छा मिला था उस पॉडकास्ट के बाद. लाइक काफी अच्छी गाइडेंस मिली थी एंड आई डेफिनेटली गॉट मोर मोटिवेटेड टू जॉइन स्केलर की लाइक टॉकिंग विद फाउंडर हिमसेल्फ काफी जेन्युइन लगा, काफी अच्छे फाउंडर थे. तो लाइक टॉकिंग मोर अबाउट लाइक हाउ आई गॉट इनवाइटेड इनटू माय यूट्यूब चैनल. जब काफी बड़ा यूट्यूब चैनल नहीं है मेरा, फिर भी लाइक ही एग्रीड टू कम ऑन पॉडकास्ट. सो ही इज लाइक मोर बुलिश ऑन 19 to 20 years old. अगर आप उनका ट्विटर देखोगे तो ट्विटर पे लाइक ही इज कॉन्स्टेंटली पोस्टिंग कि अब नेक्स्ट बिलियनियर्स जो होंगे वो 19-20 साल के फर्स्ट जनरेशन वेल्थ क्रिएटर्स होंगे. सो व्हेन आई इनवाइटेड हिम फॉर द पॉडकास्ट आई मैसेज डीएमड हिम ऑन ट्विटर कि सर आपको क्या लाइक 15 से 20 मिनट निकाल सकते हो, लाइक कुछ बात करनी है अराउंड माय आई एम बिल्डिंग दिस थिंग्स, आई हैव पास्टली डन दिस थिंग्स. सो एक कुछ बात करनी है. सो अगर आप 15 से 20 मिनट कन्वर्सेशन के लिए निकाल लो, वी विल रिकॉर्ड दैट कन्वर्सेशन, पुट इट ऑन माय यूट्यूब चैनल. सो विद इन 24 आवर्स ही रिप्लाइड कि लेट्स डू इट. एंड देयर वाज अ क्वेश्चन दैट रियली ही आंसर्ड रियली वेल. अगर किसी को देखना है तो मेरे चैनल पे देख सकते हो. विल 19-year-old अभिमन्यु सक्सेना जॉइन स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी इन 2024. सो द आंसर तुम लोग वहीं पे देख लेना चैनल पे, सो मिल जाएगा. यार ऑब्वियसली एक $multi-million फाउंडर से अगर पूछ रहे हैं और वो मना नहीं कर रहा है तो मतलब काफ़ी अच्छा रहा कि उन्होंने मना नहीं करा और तुरंत रेडी हो गए और आपका इतना अच्छा डिस्कशन हुआ. सो ग्रेट. लाइक आई जस्ट वांटेड टू से कि अगर कोई भी ये पॉडकास्ट देख रहा है सर, रीच आउट करो, जिसको भी करना है खुल के रीच आउट करो. ज्यादा क्या होगा, मना हो जाएगा. लाइक देयर इज वेरी ब्यूटीफुल सेइंग कि नॉट एवरी क्लोज डोर इज लॉक्ड, यू जस्ट हैव टू पुश या पुल. ग्रेट. शशांक, अगर किसी को स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी को ज्वाइन करना है, राइट, तो व्हाट इज द कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस? एकदम एंड टू एंड एडमिशन प्रोसेस क्या है, किस तरीके से एक सीट सिक्योर करी जा सकती है? क्योंकि द कॉलेज इज वेरी एक्सक्लूसिव और बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, है
है ना, बहुत कम बच्चों को यहाँ पर चांस मिलने वाला है। तो अगर कोई ट्राई करना चाहता है तो प्रोसेस क्या होगा, और ये बहुत सारे बच्चे और पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे होंगे, तो आप एक बार डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर दो। ओके, सो टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस, यू फर्स्टली हैव टू गो ऑन द वेबसाइट पे जाओ और वहाँ पे रजिस्टर करना होता है। सो यू जस्ट हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ ऑन द वेबसाइट एंड वेट फॉर योर, यू हैव टू चूज योर slot for the test. It could be like morning slot, evening slot, day wise slot. You just have to choose from the given slots. Slot के बाद there will be a 2 hours online assessment test. In that 2-hour online assessment test, you will be having 3 sections: math section, aptitude section, and learnability section. Math section is like almost similar to JEE Mains. अगर तुमने JEE Mains के लिए prep कर रखा है तो you will easily solve the questions. Okay. Talking about the aptitude, basic aptitude रहता है अगर तुमने like unitary method से आता है, profit and loss आता है, and speed, distance and time, ये 3 topics आते हैं, you will solve the good enough question. And talking about the learnability, so learnability is really interesting part. Okay, you might have not seen any questions about learnability. Learnability में क्या होता है? So you have given a passage. एक passage दिया होगा, you have to read that passage and understand what concept you have been taught in that passage. Then you have to answer the question based on that passage. It's not like English comprehensive passage, but it's like a DSA question. जैसे for my particular intake, I got the question of BFS, so breadth first search, depth first search. तो वहाँ पे समझा रखा था कि डेप्थ फर्स्ट सर्च होती क्या है या ग्राफ कलरिंग होती क्या है। उसके बाद नीचे क्वेश्चन पूछ रखा था ग्राफ कलरिंग से रिलेटेड कि ग्राफ कलरिंग में इतने इतने लोग हैं, लाइक वी हैव स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तुम्हें कितने कलर्स लगेंगे, तो वहाँ पे तुम्हें आंसर करना होता है। सो इस तरीके से लर्नेबिलिटी होता है। तो लर्नेबिलिटी की यू डोंट नीड एनी प्रिपरेशन, तुम्हें ऑन द स्पॉट सारे क्वेश्चंस करने होते हैं, फिर तुम्हें कुछ टाइम के लिए वेट करना रहता है, तो फिर तुमको एक रिजल्ट मिल जाता है कि इधर यू गॉट सिलेक्टेड इन 2 hours ऑनलाइन असेसमेंट, तुमने अच्छा परफॉर्म करा है, और अगर तुमने अच्छा परफॉर्म नहीं करा है तो यू विल गेट कि आप अगले इंटेक के लिए ट्राई करें, देन यू विल इनवाइटेड। अगर तुमने अच्छा परफॉर्म करा होगा देन यू विल गेट इनवाइट फॉर इंटरव्यू। सो इंटरव्यू में देयर इज 2 सेक्शन, वन इज मैथ सेक्शन, अदर से ड्रीम एंड एस्पिरेशन सेक्शन। ये टोटल 30 मिनट्स का चलता है। एंड इसमें क्या होता है, आपको 20 मिनट तक मैथ्स से पूछते हैं, तो मैथ्स में वही क्वेश्चन पूछते हैं जो आपने एनएसईटी में सॉल्व कर रखे होते हैं, और मे बी आई वाज लकी कि मेरे से वही क्वेश्चन पूछे थे। तो डिपेंडिंग अपॉन मैथ्स के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ड्रीम एंड एस्पिरेशन में आई गॉट आस्क्ड कि व्हाई आई वांट टू जॉइन स्केलर एंड व्हाट्स माय प्लान फॉर द नेक्स्ट 5 years। ओके सो उसके बाद फिर फाइनल आपको पता लगता है कि इट कुड बी लाइक एक और इंटरव्यू हो सकता है, लाइक राउंड 2 भी होता है। अगर आप राउंड 1 में अच्छा परफॉर्म करते हो लाइक, और बट आप उतने अच्छे परफॉर्म नहीं कर सकते जितना आप कर सकते थे, ऐसा उनको लगता है कि आप एक और चांस देना चाहिए, आपको एक चांस और देना चाहिए, राइट। तो हाँ, तो एक राउंड 2 हो जाता है। अगर वो डाउटफुल रहेंगे कि पहले इंटरव्यू राउंड में कि बच्चा शायद नर्वस हो गया, यस, तो एक और राउंड हो सकता है। ग्रेट। एंड पॉइंट आई जस्ट वांट टू मेंशन कि जब तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो मैथ्स का, तो दे मोर केयर अबाउट योर अप्रोच रेदर देन द आंसर। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि तुम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लो फिर डायरेक्ट आंसर बता दो, ऐसा नहीं चलता। तो यू हैव टू स्टेप वाइज अप्रोच तुम्हें समझानी रहती है। दे आर मोर इंटरेस्टेड कि तुमने क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करा, व्हाट्स योर अप्रोच टुवर्ड्स द क्वेश्चन। और मे बी वो कोई पजल आस्क कर सकते हैं फ्रॉम इंटरव्यू बिट्स, लाइक मेरे से पूछा था मंकी एंड द डोर्स पजल, जहाँ पे लाइक स्क्वायर रहता है डोर्स का, आई रिमेंबर इफ आई रिमेंबर करेक्टली। तो उसमें क्वेश्चन को तुमको पूछते हैं, तो तुम्हें समझाना होता है कि तुमने कैसे उस क्वेश्चन को अप्रोच कर, तो अप्रोच ज्यादा मैटर करती है। एक्चुअली क्या है, वो सारे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, और हमारे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में क्या होता है, जब हम लोग इंटरव्यू ले रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि अगर कैंडिडेट का अप्रोच और उसका जो थॉट प्रोसेस है वो हमें अच्छा लगे, और उसका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट अगर होता है, अगर ठीक है सॉल्यूशन नहीं फाइनल तक पहुंचा तब भी इतना जरूरी नहीं होता, अगर उसका बाकी सब ठीक लगा तो फिर उसको हायर कर लिया जाता है। तो वो सेम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि फाइनली सब बच्चों को मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ही करना है, उससे रिलेटेड ही आगे फ्यूचर में जाना है, तो वो सेम प्रैक्टिस अभी भी यहाँ फॉलो हो रही है। Exactly. So एक बार just summarizing all the things, you just have to firstly you register on the website, choose your slot, give the online assessment test. If you got selected, you will get an interview call. Give your interview, be genuine, be real in the interview, calmly होके देना, and just give your interview and you will get a call for scaler if you are just good enough to get. Okay. And Shashank, you mentioned in our LinkedIn chat कि आपने learnability section में I think कुछ 100 स्कोर किया था, right? 100 out of 100. Exactly, like I was a top scorer. और ओवरऑल एनएसईटी में आपका टॉप परसेंटाइल था। तो बहुत सारे बच्चे ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे जो एनएसईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर अभी उसके लिए अप्लाई करने वाले हैं। तो मतलब आप ऑब्वियसली आप टॉपर हो, तो किस तरीके से एग्ज़ाम क्लियर करा जा सकता है, क्या रिसोर्सेज फॉलो करे जा सकते हैं, कैसे टाइम मैनेज करना है, तो कुछ एडवाइस थोड़ा सा बच्चों को आप बता दो जिससे उनके चांस बढ़ जाएं। सो अगर टॉकिंग अबाउट द प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, मैथ्स इज रियली सिंपल इफ यू जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर जेईई मेंस एंड एवर डिड योर मैथ्स फ्रॉम लाइक बेसिक एनसीईआरटी कर रखी है, एक साइड बुक भी अगर कर रखी है, एल बुक भी, आरडी शर्मा और एनीथिंग, यू विल इजीली सॉल्व द मैथ्स क्वेश्चन। बट इफ यू जस्ट वांटेड टू गो फॉर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस थोड़ा सा लाइक अच्छे लेवल पे करना चाहते हो, सो यू कैन यूज अरुण शर्मा एंड लेवल 1 और लेवल 2 के क्वेश्चंस कर लो, डिफिकल्टी मोर देन इनफ, इतने में तुम मैथ सॉल्व कर लोगे। एंड वो सेम गोस फॉर द एप्टीट्यूड, बेसिकली यूनिटरी मेथड, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड बेसिक क्वेश्चंस अगर तुम कर लोगे, सो यू विल इजीली गो विद द एप्टीट्यूड।
learnability, there's no perfect strategy to go for the learnability. Get your times, like practice learnability questions from the practice sets that they will give you after, like you can find on the website 2 practice set मिल जाएंगे sample papers, you can solve them and understand कि learnability question कैसे होते हैं, and you have to make your thought process around it कि तुम कैसे question solve करोगे, whether you are going to read full passage first and then answer the question, or like maybe if you are good enough to, like for my particular take, I have previously did like DSA, so I was like known कि BFS क्या होता है, DFS क्या होता है, so I was good lucky enough, so I got the same question. So yeah, in this way मतलब बेसिकली अगर तुम सैंपल पर सॉल्व कर लोगे जो तुम्हें दिए गए होंगे, तुम इजीली समझ सकते हो कि पेपर कैसा, इतना टफ नहीं रहता, जेईई मेन जे एडवांस लेवल टफ नहीं रहता, लेकिन हाँ ठीक ठाक टफ रहता है, बट इंटरव्यू सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा सा रहता है. ओके, तो ये मतलब इसका पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है, जेईई की तरह नहीं है, मतलब उस पैटर्न को डिफिकल्टी इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू जेईई मेंस. क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लाइक प्रीटी सिमिलर टू जेईई मेंस, नॉट ऑलमोस्ट बट प्रीटी सिमिलर टू जेईई मेंस. कुछ क्वेश्चन जेईई मेंस से बराबर होंगे, कुछ क्वेश्चन थोड़े इजी होंगे, बट या ओवरऑल यू कैन मेक इट. और सब कुछ ऑनलाइन रहेगा, कहीं जाना नहीं है? सब कुछ ऑनलाइन. ओके, इवन इंटरव्यू, राइट? इवन इंटरव्यू, लाइक वीडियो कॉल पे इंटरव्यू होगा, यू विल गेट अ लिंक इन योर मेल एंड यू जस्ट हैव टू जॉइन इट बिफोर लाइक 10 minutes एंड यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम, लाइक देन द इंटरव्यूअर केम इन एंड वो इंट्रोडक्शन पूछेंगे सबसे पहले, एंड इंट्रोडक्शन अपना रेडी रखना. तो उसके हिसाब से फिर इंटरव्यू से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इंट्रोडक्शन में अगर तुमने कुछ स्पेसिफिकली. ओके, सो आई फॉरगॉट टू मेंशन दिस पॉइंट कि जब तुम फॉर्म भर रहे होगे देयर विल बी अ सेक्शन नेम इंटरव्यू प्रोफाइलिंग. ओके, सो देयर यू हैव टू लाइक 3 सेक्शन, और तुम्हें सब में अपना लिस्ट करना रहता है कि तुमने कुछ अचीवमेंट्स कर रखे हैं को करिकुलम में. मे बी तुम यू आर लाइक गुड डांसर, यू आर गुड स्विमर, कोई स्पोर्ट्स इवेंट में जीता हो या कोई कोडिंग कॉन्टेस्ट दिया हो, तो इस तरीके से तुम मतलब मेंशन कर सकते हो. ओके, ग्रेट. सो इंटरव्यू के लिए आपने कुछ प्रिपरेशन करी या फिर मतलब सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर किया, या कुछ अलग से कुछ रिसोर्सेज फॉलो करे टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू? Talking about my particular case, I've already given like few interviews, so I was like pretty confident about the interview part, and yeah, I did the preparation for introduction, like अपना एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन मैंने रेडी कर लिया था कि मैं क्या बोलने वाला हूँ इंट्रोडक्शन में, एंड बाकी सब फ्री फ्लो था. एंड लाइक कांशा गौर मैम थी मेरे में, सो शी वाज लाइक रियली काइंड. उन्होंने काफी अच्छे से लाइक बताया कि अगर तुम नर्वस हो रहे हो, लाइक आई मेड अ क्वेश्चन रॉन्ग, एक क्वेश्चन था जो मैंने मैथ्स से गलत कर दिया था, सो शी वाज पेशेंट इनफ. उन्होंने मुझे पूरा समझाया कि ये यहाँ पे तुम अप्रोच गलत कर रहे हो, देन वहां से मैंने अप्रोच सही कर दी एंड आई गॉट द आंसर. ओके, वो थोड़ा हिंट दे देते हैं अगर बच्चे नर्वस हो रहे हैं. ग्रेट, हिंट दे देते हैं. अगर तुम पूछोगे कि मैम ये क्वेश्चन मैं गलत कर रहा हूँ या मैं सही कर रहा हूँ, तो बेसिकली इट्स लाइक अ फ्रेंडली कन्वर्सेशन होती है मैथ में. ऐसा हार्ड कन्वर्सेशन नहीं होती कि तुम्हें क्वेश्चन दे दिया और तुम मतलब तो सॉल्व करके दो, नहीं दे पाओगे तो कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता. तो लाइक फ्रेंडली कन्वर्सेशन होती है, काफी फ्रेंडली कन्वर्सेशन. लाइक इवन आई वाज सरप्राइज कि इतना हेल्प, मतलब काफी हेल्प कर दी थी मैंने. ग्रेट. तो शशांक, आपने एसएसटी को ज्वाइन कर लिया, राइट? मतलब अभी आई थिंक 1-2 महीने के बाद आप बैंगलोर जाओगे, और लाइक ऑलमोस्ट लाइक 20 days left. सो अभी आप काफी एक्साइटेड होगे कि चलो अब जाना है, सब कुछ स्टार्ट करना है. लेकिन एक क्वेश्चन मुझे आ रहा है कि एसएसटी क्या न्यू जनरेशन कॉलेज है, राइट? और क्या होता है कि बच्चों को तो इसके बारे में पता रहता है कि इतने अमेजिंग प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, करिकुलम अच्छा है, स्केलर 2018 से ऑलरेडी है, और उसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी जो अदर प्रोग्राम है उसके लिए सब कुछ इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है ना? टीचर्स क्या है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, मेंटोर्स जो आपने बीएसएम कल्चर बताया, आईसीपीसी वाला बताया, ये सारी इंफॉर्मेशन बच्चे तो देख लेते हैं कि ये लोग एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा इंप्रूव करना चाह रहे हैं, और एक ट्रेडिशनल कॉलेज में जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व कर रहे हैं, और जो इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट है बाकी कॉलेजेस में तो पढ़ाया ही नहीं जा रहा, तो यहाँ पर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करा जा रहा है, बच्चों को उस लेवल का ट्रेन करा जा रहा है. तो बच्चे क्या है कि यूट्यूब पे देख लेते हैं, सर्च कर लेते हैं, बट अगर मैं अपने पेरेंट्स को बोलूं इवन उनको नहीं समझ आने वाला, राइट? तो मेरे पेरेंट बोलेंगे कि आप ये न्यू जनरेशन कॉलेज ज्वाइन मत करो, राइट? और कुछ के पेरेंट्स हो सकते हैं कि चलो मान जाए, बट आपके केस में क्या था कि आप आईआईटी मद्रास को आप ड्रॉप कर रहे हो और आप एसएसटी को ज्वाइन कर रहे हो, तो ये तो और ज्यादा एक ऐसा पॉइंट है कि पेरेंट्स पक्का मना करने वाले हैं. तो उस केस में मैं जानना चाहता हूँ कि आपके फादर या मदर में से किसी ने बोला था कि नहीं आईआईटी मद्रास से कंटिन्यू करो, एसएसटी छोड़ दो? Okay, so talking about my parents' resistance, like my parents had a good amount of resistance when I was joining Scalar School of Technology over IIT Madras. But I explained them that Scalar School of Technology might be a new college, but I personally really bullish on Scalar School of Technology, and I personally think that Scalar School of Technology आने वाले टाइम में like इतना मतलब mainstream हो जाएगा कि it might beat some IITs or NITs. Might be not making any statement, but personally what I think, it's my personal opinion, I'm really bullish on Scalar School of Technology. And talking about my parents' resistance, so I made them explain ki it's about the latest curriculum, about technologies people are building. Around that, my parents like Scalar School of Technology क्यों join करना जब IIT मद्रास में हो, तो there was a resistance, but I made them talk with my counselor, and फिर counselor से बात करके उनको समझाया, and then I also mentioned कि skills over degree वाला point थोड़ी बहुत बातें करी, and then also give them news कि
40 to 45% of the students from IIT Bombay even are not placed. तो ये न्यूज बाहर आई थी उस टाइम पे। पहले कौन मान गया था, फादर मदर में से कौन पहले आपका मान गया था कि चलो ठीक है? फादर पहले मान गया था, लाइक ही इज लाइक थोड़ा सा टेक सेवी है तो वो जान पहले मान गया। लाइक मदर का तो इस टाइम पे भी थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, कहते हैं कि अभी भी चांस है वापस का, बट माय फादर इज रियली कन्विंस्ड। चलो 20 दिन बचे हैं, जब आप चले जाओगे फाइनली बैंगलोर तो मदर को लगेगा चलो अब ये फाइनल डिसीजन है इसका, ठीक है। शशांक, यू मेंशन ना कि स्किल्स ओवर डिग्री, तो इस पे एक छोटी सी स्टोरी यार मैं भी आपको बता देता हूँ कि मैंने भी बीटेक किया था कंप्यूटर साइंस से। मैं डिग्री तो मैंने ले ली थी बट मैंने स्किल्स ग्रैब नहीं करी थी, क्योंकि हमारे कॉलेज में वही ट्रेडिशनल कॉलेज, वो करिकुलम वही पुराना, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, हम लोग वेल्डिंग करा करते थे। मतलब जब तक 4th ईयर तक हमने पास किया तो जो इंडस्ट्री में स्किल्स रिक्वायर्ड है वो स्किल्स हमारे पास नहीं थी, जबकि मेरे पास प्रॉपर डिग्री थी। उसके बाद भी प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो आज के टाइम पे डिग्री के साथ स्किल्स बहुत जरूरी है, वो काफी लोग मिस कर रहे हैं। और उसके लिए मैंने काफ़ी साल स्ट्रगल किया कि मेरी पहली जॉब लग जाए। और उसके बाद मैंने भी स्केलर ज्वाइन किया था। स्केलर का क्या होता है कि एक 1 ईयर प्रोग्राम होता है जिसको स्केलर अकेडमी करके बोलते हैं, मतलब ग्रेजुएट लोगों के लिए अलग उनका 1 ईयर प्रोग्राम होता है। तो वो मैंने ज्वाइन किया था। तो वहाँ पर मेरे को 1 ईयर प्रोग्राम में उन्होंने लाइव कोडिंग कराई, DSA पढ़ाया, सिस्टम डिज़ाइन पढ़ाया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ाई, जो मॉडर्न फ्रेमवर्क होते हैं आजकल, रिएक्ट, स्प्रिंग बूट, उन सब पे प्रोजेक्ट बनवाया। तब जाके मेरे अंदर वो स्किल्स आई जो कंपनीज को रिक्वायर्ड है। और फिर वहीं से मेरा प्लेसमेंट हुआ था एक अच्छी कंपनी में, टाउनस्क्रिप्ट बुक माई शो ग्रुप में। और मेरे बैच में सारे के सारे ऑलमोस्ट 100% प्लेसमेंट था, बड़ी बड़ी कंपनीज में ही गए थे। तब मुझे समझ आया था कि सिर्फ डिग्री लेने से कुछ नहीं होता। आप अगर डिग्री ले लोगे, आप स्किल्स नहीं देख रहे हो तो फिर कुछ नहीं होने वाला। तो मतलब आपने सिर्फ अपना कॉलेज सेलेक्ट कर लिया कि चलो डिग्री मिल रही है और वहाँ का करिकुलम मिस कर दिया, ढंग से नहीं चेक किया, तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकता है। Definitely, like I even remember a very famous quote by Kunal Shah, founder of Thread and Freecharge: "Pick the professor, not the college; pick the skill, not the degree." यस यस, मतलब ऑब्वियसली यार ये आजकल ट्रेंड चेंज हो गया है, स्किल्स ही मैटर करती है। क्योंकि मैं ऑलरेडी एक सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, तो हमें पता है कि हम लोग हायरिंग उसी बेसिस पे करते हैं। डिग्री को एक बार के लिए देखेंगे, बट अगर कैंडिडेट के अंदर स्किल्स नहीं है, चाहे वो IIT से, NIT से, किसी कॉलेज से है, उससे फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि कंपनी को रेवेन्यू अपना जनरेट करना है, उसको स्किल्स चाहिए, उसको डिग्री लेके कुछ नहीं करना है। डिग्री से कंपनी का रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा। Like even when I did like multiple projects on freelancing and multiple job offers from full-time job offers from remote startup, like अभी तक किसी ने डिग्री नहीं पूछी to be honest। अभी तक like I have done like projects at that's like 2 lakhs per month वाले projects भी करे हैं मैंने, पर अभी तक किसी ने to be honest अभी तक मेरे से डिग्री नहीं पूछी, until unless like the main goal of the overall company and the HR system is to get the job done. If you are the person who can get the job done, they will hire you. If or बाकी थोड़ा सा टैग मैटर करता है until unless देखो tier 1 IITs का टैग मैटर करता है, not going to say anything on that, IITs का टैग आज भी मैटर करता है, बट अदर कॉलेजेस फिर तुम एवरेज कॉलेज से हो तो कुछ मैटर नहीं करता, कोई भी स्किल या डिग्री, लाइक स्किल मैटर करती है, फिर डिग्री कोई नहीं। मतलब डिग्री हमें देखनी चाहिए, ऐसा भी नहीं है कि ऑब्वियसली आप स्केलर में आपको जो रेलेवेंट डिग्री है वो मिल ही रही है, राइट, उसके साथ स्किल्स भी मिल रही है, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ डिग्री मिल रही है, जैसे कि बहुत सारे tier 3 कॉलेजेस में क्या होता है कि बीटेक करके डिग्री दे देते हैं और कुछ भी बच्चों को आता नहीं है, और यही पूरे 99% इंडिया का हाल है। और एक और आर्टिकल मैंने पढ़ा था, एक ब्लॉग में पढ़ा था कि पता नहीं 90% कुछ जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मतलब जिन्होंने कंप्यूटर साइंस से करा इंजीनियरिंग, वो अनएम्प्लॉयबल है। मतलब उनको कंपनीज एम्प्लॉय नहीं कर सकती, उनको कुछ भी नॉलेज नहीं है। मतलब इतना फीस भी चार्ज करते हैं tier 3 कॉलेज, बट कुछ होता नहीं है। ओके शशांक, थैंक यू वेरी मच। एंड इफ यू डोंट माइंड, मैं आपका लिंक्डइन एंड यूट्यूब चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, ताकि आपने कुछ 3 to 4 वीडियोस NSCT एग्जाम के ऊपर भी बनाई है, तो बच्चे वो रिफर कर सकते हैं, उनका कुछ एग्जाम क्लियर होने में हेल्प होगी। एंड दे कैन ऑल्सो वॉच जो आपने अभिमन्यु स्केलर के फाउंडर हैं उनके साथ पॉडकास्ट किया, बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट है, वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। और लिंक्डइन पे आपको अप्रोच भी कर सकते हैं अगर कुछ उन्हें डाउट होगा। और मैं NSCT का जो एडमिशन फॉर्म का लिंक है वो भी मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर अभी तक किसी ने फॉर्म फिल नहीं करा है तो बहुत ही कम टाइम बचा है, आप जाके फॉर्म फिल कर दो और ट्राई करो कि आप ये एग्जाम क्लियर कर पाओ, इंटरव्यू क्लियर कर पाओ और एक सीट सिक्योर कर पाओ। एटलीस्ट आपको ट्राई करना चाहिए। You should give it a try. Like you will get like कुछ मिला ना, you will get a definitely मतलब एक crazy amount of peer network मिलेगा। जो भी selective 200 स्टूडेंट्स होंगे, सब में एक ना एक क्वालिटी होगी। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस पॉडकास्ट। वीडियो को प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आप शेयर कर सकते हैं बाकी लोगों के साथ जो अभी स्टूडेंट्स कॉलेज को सर्च कर रहे हैं, वो ये वीडियो देखेंगे, उन्हें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। थैंक यू वेरी मच।